गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग की डिमांड थी कि इस चैप्टर पे एक वीडियो बनाई जाए, तो ये चैप्टर की वीडियो लेके मैं आपके सामने आ चुका हूँ। सो एज पर माय पैटर्न, पहले मैं इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसके बाद मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन दूंगा इस चैप्टर की। सो एज यू कैन सी द चैप्टर्स टाइटल इज पोएट्स एंड पैनकेक्स। सो वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट पोएट्स आर, उनको कवि बोलते हैं। But when we talk about pancakes, they are not that pancakes that are eaten. The pancakes here are a name of a brand of makeup. ये एक makeup brand है. It is basically used by Gemini Studio. Gemini Studio was made somewhere around independence. So this was in the stage of its infancy when it was made. So a lot of products of pancakes for using makeups on artists who use acting skills for movies, serials in Gemini Studio. These things were basically used over there, all these products. So now let's talk about some important characters. The writer here is Ashoka Mittal, and he is also playing an important role in the chapter. Here he is the author and he works in a cubicle. Cubicle means a very small room which is not used for any other productive thing. So what does he do? That he collects newspaper cuttings which many people and his colleagues find very unuseful. They think that this is not a job, but he does that. And another important character here is an office boy. His name is not given. What does he do? That his job is to slap paint when the shoot is happening on the ground. Slap paint is not like slapping and then painting. It's like painting on the spot, doing makeup on the spot. Office boy has a quality that he wanted to become an actor, he wanted to become a director, he wanted to become a writer also. But he hated Subu. Subu, who happens to be the main character of the chapter. At Gemini Studio, the boss, the number one person, the number first person is Vasan. And the second important one is Subu. But office boy hates Subu. Reason is Subu is like right hand of the boss. And he is a powerhouse of talent. The reason is that whenever he is around the boss, he gives lot of inputs how a scene should be shot. But people on his back call him sycophant, which stands for chaplus, who tries to say yes to the boss on everything. But Subu is a very loyal and kind person. He treats everyone with great respect. And he is also a talented actor. Without him, Gemini Studio is incomplete for sure. Then the writer Ashoka Mittal, who happens to be the author also here in the chapter, who is mentioned. So we need to understand that there are poets, there are writers, obviously, because if a movie is going to be made, poets are required to write songs, writers are required to write dialogues and stories. There is a lawyer too. People call him legal advisor, but we also get to know that he had destroyed the career of an actress. Accidentally, obviously not intentionally. Then let's talk about something very, very important. British Rearmament Army. This team of 200 people from Britain came and did their show at Gemini Studio. Followed by Stephen Spender's visit, who came at Gemini Studio. When he came, the boss of the studio, Mr. Vasan, gave a speech on freedom and democracy. But because he was a British man, his accent was quite difficult to understand for the people
who were sitting in audience. So his words, his sentences were beyond understanding of the audience. They hardly could figure out why he was there. They did not understand the purpose of his visit also. Nobody knows Stephen Spender then, because he was not that much famous, and only when author leaves Gemini Studio and then when he has lot of time, then he buys a book in which there are 6 men and 6 essays. Basically the writers mentioned over here are Richard Wright, Louis Fisher and Stephen Spender. Only then he gets to know that Stephen Spender is a famous poet in Britain. And there is one more thing, that the author Asoka Mitran was very much interested in buying the goods or things which were available at discount for sales. So he loved doing that. Basically, apart from that, what we get to know about Subu, there is one more thing. Subu, because he was a Brahmin, so author always felt like that office boy had a problem with Subu because he was a Brahmin and he had an upper hand. There is one more thing, there is one more term in the chapter which you all need to understand, that is national integration. If a question comes on national integration, what you have to reply that at Gemini Studio, people from many regions, many areas, maybe many states, many cities and from various religions came and worked. So it was a kind of national integration, because India was growing up after the independence, and this studio was set up just then, so we could feel the emotion behind it, because when India got freedom, people of every region took part in the freedom fight. So this was all about the chapter in English language. Now I'll translate this chapter in Hindi for you all. तो बच्चों, Gemini Studio के ये Gemini Studio का ही बेस है इस चैप्टर के अंदर जो भी है. Gemini Studio सेटअप किया गया था इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद में, और ये जो स्टूडियो था ये इन्फेंसी की स्टेज में ही था इस टाइम पे. बहुत सारे लोग यहाँ काम कर रहे थे, बहुत सारी मूवीज यहाँ बन रही थी. बेसिकली ये स्टूडियो जो रिस्पॉन्सिबल था मूवीज बनाने के लिए, साउथ में मूवीज बन रही थी. इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं. सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो इसके अंदर हमको समझ आता है वो ऑब्वियसली अशोका मित्रन है, राइटर है. वो वहां पे बैठा है, वो वहां पे उसको एक छोटा सा कमरा दिया हुआ है स्टूडियो के अंदर, जहां पे उसका काम है न्यूज़पेपर की कटिंग करना. लेकिन लोग समझते हैं कि न्यूज़पेपर की कटिंग उतनी अच्छी नहीं है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई काम की नहीं है. तो एक ऑफिस बॉय जो वहां पे रखा गया होता है, जो एक्टर भी बनना चाहता है, राइटर भी बनना चाहता है, डायरेक्टर भी बनना चाहता है, लिरिसिस्ट भी बनना चाहता है, उसका काम वहां पे क्या रहता है, स्लैब पेंट करने का रहता है, यानी कि लोगों का मेकअप करने का ऑन द स्पॉट, जब शूट चल रहा हो उसी दौरान पे मेकअप करने के लिए, पहले से नहीं. दूसरी चीज कि वो सुबह से उसको प्रॉब्लम थी, सुबह से वो नफरत करता था, सुबह से वो जलता था, तो वो बार बार आके ऑथर को कंप्लेंट करता था. तो ऑथर समझ जाता था कि ये सुबह से जलता है क्योंकि सुबह ब्राह्मण है. दूसरी बात, सुबह जो था वो सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन था अपने बॉस वासन के बाद में. वो क्या था, सुबह की क्वालिटीज बहुत, अगर आपको आती एग्जाम में सुबह कैरेक्टर स्केच ड्रॉ करने के लिए, तो वो लॉयल था, यानी ईमानदार था, काइंड था, लोगों से बड़े प्यार से बात पेश आता था. तीसरी बात, वो बहुत टैलेंटेड एक्टर था, और वो दायां हाथ अपने बॉस का ऐसे ही नहीं बन गया था. वो बहुत अच्छे अच्छे जो सीन्स डायरेक्टर शूट भी नहीं कर पा रहे थे कि उसको शूट कैसे किया जाए, इसको टेक्निक आती थी, इसको एक नैक था, एक वर्ड यूज होता है नैक, KNAC, ही हैड अ नैक, कि भाई उस सीन को कैसे शूट किया जाए. लेकिन लोग पीछे से उसको साइकोफेंट यानी कि चापलूस बोलते थे. टर्म याद कर लेना, साइकोफेंट के चापलूस बोलते थे. आप चाहो तो एप्पल पॉलिशर भी बोल सकते हो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए. तो होता क्या है कि इसके बाद में हमको पता चलता है, हम सुबह के बारे में जान चुके हैं, हम ऑफिस बॉय के बारे में जान चुके हैं. अब हम जानते हैं एक इवेंट हुआ था जेमिनी स्टूडियो में, जो ब्रिटिश रीआर्मामेंट आर्मी आई थी. 200 लोग थे. ये 200 लोग जो थे कई अलग 10 या 12 अलग अलग नेशनैलिटीज से आए थे, अलग अलग देशों से आए थे. इन लोगों ने एक शो किया था, एक प्रोग्राम किया था जेमिनी स्टूडियो में. जस्ट उसके बाद में बहुत फेमस पोएट स्टीफन स्पेंडर, जो आप लोग सब जानते हो क्योंकि आपकी शायद सेकंड पोम है, स्लम क्लासरूम, एन एलिमेंट्री स्लम क्लासरूम इन अ स्कूल. तो ये स्टीफन स्पेंडर वही है, वो विजिट किए थे जेमिनी स्टूडियो में,
और जब वो विजिट किए थे तो जो बॉस था वासन, उन्होंने उनके वेलकम में एक स्पीच बोली थी जो कि फ्रीडम और डेमोक्रेसी पे बेस्ड थी। और यहाँ पे थोड़ा सा आयरनिकल भी हो जाता है, रीजन कि उसी टाइम इंडिया आजाद हुआ था और अंग्रेजों से ही आजाद हुआ था और इंडिया ने डेमोक्रेसी को अपनाया था। तो शायद ये कहीं ना कहीं एक कमेंट था ब्रिटिश शासन पर, जब एक ब्रिटिश वहां पे कुछ अपना प्रोग्राम लेकर आया था। अब लेकिन जब स्टीफन स्पेंडर की बारी आती है, वो बोलने लगता है, तो लोग समझ नहीं पाते फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि उसका एक्सेंट ब्रिटिश है और साउथ में लोग उतने डेवलप नहीं हुए थे इंग्लिश में, उतने वो टच में नहीं आए थे ब्रिटिश के, जो वो सुन सके, समझ सके कि वो एग्जैक्टली कह क्या रहा है। बिकॉज जब आपके सामने कोई दूसरे एक्सेंट में बोलता है तो आपको थोड़ा टाइम लग जाता है उसके एक्सेंट को समझने के लिए। देखिए मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हम बोलेंगे एप्पल, सेब को, बट फॉरेनर्स कॉल इट एप्पल। सो बड़ा डिफिकल्ट होता है टू फाइंड आउट कि वो एग्जैक्ट क्या बोल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया वे क्लास में कि एनवेलप नहीं ऑनवेलप होता है, तो ये लोग तो प्रॉपर जो इंग्लिश होती है वैसे ही बोलेंगे, तो इसलिए लोगों को समझ नहीं है और लोग ये भी नहीं समझ पाए यहाँ पे करने क्या है। और इवन राइटर अशोकामित्रन भी समझ नहीं पाए है कौन, फेमस है तो कैसे है, क्यों है, तब तक नहीं समझ पाए जब तक कि ऑथर ने जेमिनी स्टूडियो छोड़ नहीं दिया। जब वो जेमिनी स्टूडियो छोड़ देता है, वो बहुत फ्री रहता है, टाइम बहुत है, लेकिन पैसा नहीं है उसके पास, तो वो क्या करता है कि जो डिस्काउंटेड रेट पे जो भी चीजें मिल रही है, जो सेल चल रही है, डिस्काउंट सेल चल रही है, उन पे जाता है, चीजें खरीदता है। अब वो एक बुक खरीदता है जिसमें 6 आदमी होते हैं और 6 ऐसे लिखे गए होते हैं। आदमी जो इसके राइटर्स है, वो रिचर्ड राइट इसके अंदर मेंशन है, लुइस फिशर मेंशन है, स्टीफन स्पेंडर मेंशन है, 3 नाम और मेंशन है बुक के अंदर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये। तो यहीं से उसको स्टीफन स्पेंडर देख के पता चल जाता है कि स्टीफन स्पेंडर जो हमारे स्टूडियो में आए थे वो कितने फेमस हैं। और बेसिकली हमको एक चीज और ये समझने की जरूरत है कि नेशनल इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल इंटीग्रेशन कैसे शो किया गया इसके अंदर। तो आप बताएंगे कि इस स्टूडियो के अंदर जितने लोग काम कर रहे थे अलग अलग रीजन्स से, यानी अलग अलग एरिया से और अलग अलग रिलीजन से भी वो लोग यहाँ पे आए हुए थे, काम कर रहे थे। तो एक राष्ट्रीय एकता वहां पे बनी हुई थी। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब है कि एक राष्ट्रीय एकता वहां बनी हुई थी। लोग बहुत सारे अलग अलग धर्मों के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग जगह से आके एक जगह काम कर रहे थे, तो नेशनल इंटीग्रेशन को सिंबलाइज वो कर रहा था। उसके अलावा एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को समझनी चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में बताया गया है कि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस कितना डिफिकल्ट टाइम फेस करते हैं जब वो शूटिंग करते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली जब वो मेकअप रूम में होते हैं तो पता नहीं कैसी उस टाइम की लाइट्स जो थी उतनी अट्रैक्टिव या उतनी हाई क्वालिटी की लाइट्स नहीं थी, तो उनके चेहरे पे पड़ रही है और उनका मेकअप भी अच्छा नहीं किया गया। बेसिकली जो मेकअप यहाँ पे यूज किया गया, पैनकेक्स मेकअप ब्रांड जो यूज किया गया, वो उनको ज्यादा सुंदर दिखाने के लिए नहीं बल्कि बदसूरत दिखाने के लिए किया गया है। शायद ये भी कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ कमेंट है कि मेकअप से लोग उतने सुंदर नहीं दिखते हैं। तो बच्चों ये था मेरा चैप्टर और ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि यह चैप्टर कहीं ना कहीं आपको हेल्प करे। थोड़ा सा आपको और डिटेल में इसको स्टडी करेंगे तो थोड़े और पॉइंट्स आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम अहेड। बेस्ट ऑफ लक।